Good evening, ma'am. मैम आज क्या पढ़ना है हमने? म्यूट करता हूँ। एक पागल बच्चा अभी कर रहा मैम को दोस्त वहां पीछे बैकग्राउंड में उसके इतना शोर आ रहा है, क्या बताऊं। बोलता मैम आज क्या पढ़ना है हमने। बेटा विल यू ऑल म्यूट? मैं अभी बताती हूँ क्या पढ़ना है आपने। बैठो इधर। Who is this? वंशिता बेटा ऐसे अपने ही आप को Today we are going to study we are going to continue with your chapter constitutional design. Last time we had done about the meaning and the need of constitution and the path in making of Indian constitution, the problems which were faced and what were the various things, documents that were consulted to make Indian constitution. Let me have a quick revision of that, what all we did last week. Can anybody define a constitution? Ma'am, constitution is the set of rules on the basis of which government runs. Very good, very good. In democracy. What's your name, beta? Ma'am, Nikhil. Nikhil, very good. Bache, constitution is a set of rules that helps to run a country, right? It is a set of rules which helps to run a country. This constitution, the rules which are written in the constitution are above all. Everybody living in a country has to follow the constitution, right? This is what constitution is. Why do we need it? What is the need of constitution? Ma'am, the need of constitution. Give me points. 1 point, first point, second point, third point. Start giving me points. What is the need of constitution? Ma'am, distribution of rights. What is it? Ma'am, equally distribution of rights and resources. Equal distribution of rights and resources. All right. Okay. Can anyone else give me any answer on why do we need a constitution? All right. So I'll just give a quick recap to you. Constitution is required so that we come to know that what are the rights of citizens and what powers does the government have, right? Also, it limits the powers of the government. It also tells us what would be the relation of citizens to citizens and citizens to government, right? So all these things give us the necessity of constitution. Then what were the three major problems that were faced by the leaders of India at the time of independence when they were about to make the constitution? There were three major problems that were faced by the leaders of India. Can anyone narrate those problems? कोई बताएगा? पहली प्रॉब्लम थी, एक तो इंडिया वाज अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री. सेकंड, that because of the partition, the lakhs of people died across the border, right? So because of that, what happened, that the
people of India, they were in trauma. They were very insecure whether what would be the future of the country, right? So that also was a big challenge in front of the leaders. Then the third problem was that it was left to the princely states. The Britishers left it on the princely states whether they wanted to join India or Pakistan, or they wanted to remain independent. So the merger of princely states with India was also a great problem in front of the leaders. Now these were the problems that Indian leaders faced. Now how did the journey of constitution start? How did it start? In 1928, Motilal Nehru, along with 8 other congressmen, they wrote some points, some values on which our constitution would be framed. Then the second was that in 1931, in the Karachi session, 1931 Karachi session of Indian National Congress, some basic principles of our Indian constitution were decided. Also, the Government of India Act of 1935 provided many points on which our constitution was based. Then the working of leaders in the British legislature, working of Indian leaders in the British legislature also proved to be helpful in drafting the constitution. And finally, many values were taken with from the various constitutions of the world, like from the Constitution of Britain, we took the parliamentary type of democracy. From the Constitution of America, we took the Bill of Rights. From the Bill of Rights of America, we took our fundamental rights. Then from Russian Revolution, we took the concept of socialism in India. And from the French Revolution also, we took the values of liberty and freedom and democracy, etc. In our constitution. So this was the path in making of constitution. इतना हमने last week किया था. याद है सबको? Any problem anywhere? No, ma'am. Are the things clear to you? Today, we are going to read about the where was socialism? There is a question, let me, from Rajni. Rajni, there isn't any reason that why socialism and things were not added in the constitution, but slowly and steadily when the leaders realized that such things are also important in a constitution, they started adding those things. In the last topic of this constitutional design, we are going to study about how constitutional amendments proved to be very useful. Yes, proved to be very useful. Rajni, I'm coming to your point. Just listen to what I'm trying to say. In the last topic of this constitutional design, we're going to study about the constitutional amendments. There we are going to study that what all major amendments were made in the Constitution of India, and what and why were they made? What were the reasons behind them? So let us leave all these questions till the last of the topic, and let us start up with the topic for today, which is Constituent Assembly. Now, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये लोगों ने बनाई और इसमें क्या क्या काम किए. This is what we are going to study about it in this topic. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले हमने देखा कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी. अगर इंडिया फ्री होता तो बिकॉज our leaders planned to base the model of government on democracy. Right? So if our country would be a democratic country, then we obviously required a constitution. Right? अब constitution में values तो बड़े suggest कर रहे थे, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं. But there should be an official team which would write the constitution, draft the constitution properly, taking all the suggestions, discussing the suggestion, and finally drafting the constitution. Now that team was called as Constituent Assembly. The team of people, the group of people
who wrote the Constitution of India is called the Constituent Assembly. Right? Now, इससे पहले कि हम आगे करें, दो चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, the chairman of the drafting committee and the president of Constituent Assembly. ठीक है? Chairman of drafting committee, as you all know, was Dr. B.R. Ambedkar, भीमराव अम्बेडकर थे chairman, और president थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. उनका नाम कम लिया जाता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. वो प्रेसिडेंट में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख के आ जाते हैं. ठीक है, तो आपने ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Right? I think you all have got the main point here. Now let us start up with the Constituent Assembly. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जितने हमारे लीडर्स थे उन्होंने इलेक्शंस की. ठीक है, पहले इलेक्शंस हुई कि कौन कौन लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे. तो नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न. राइट? जैसे हिस्ट्री में डेट्स लर्न करते हो, यहाँ पर भी अब आपने कुछ 2-3 डेट्स हैं जो आपने लर्न करनी है. जुलाई 1946 the elections for Constituent Assembly. I'll write CA for Constituent Assembly. जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. ठीक है, कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे. देन दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन, after the members of Constituent Assembly were elected, the first meeting of Constituent Assembly was held in December 1946. The first meeting of Constituent Assembly, CA means Constituent Assembly. The first meeting of Constituent Assembly was held in December 1946, and the elections to Constituent Assembly, they were held in July 1946. ठीक है, but in 1900 originally there were almost more than 345 or something. The original members of Constituent Assembly were more than 350, like, right? But after they were I think 300 and almost 89 or 99, 389 or 99 originally were the members of Constituent Assembly. But after the partition in 1947, what happened that the many leaders, they shifted to Pakistan. So finally there were 299 members of Constituent Assembly. There were 299 members of Constituent Assembly, right? And these members, they came up with the constitution on 26th November 1949. 26 November 1949 में ये जो Constituent Assembly है, it adopted the constitution. Constitution was adopted. ठीक है, और 3 महीने के रिव्यू के बाद 26 जनवरी 1950 Constitution was implemented. And after that, every year 26 November 1950 is celebrated as what? Can you tell me? 26 January 1950 is National Constitution Day. No, what did you say? Ma'am, Constitution Day. No. 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? Ma'am, Republic Day. हाँ जी, तो why did you say Constitution Day? What is Constitution? No. मैम आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटी, मुझे लगा कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में ही हो. No. 26 जनवरी 1950 को हम लोग हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं. ठीक है,
और बिकॉज रिपब्लिक डे, हमें पता है रिपब्लिक डे वाले दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया था। बनके तैयार तो 26 नवंबर 1949, 3 महीने पहले हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, लेकिन और इसी से हम रिपब्लिक की 299 members. Is the board not visible to you, beta? मैम इट इज क्लियर एंड विजिबल मैम। मैम लास्ट के मैम थोड़े से डिजिट्स नहीं दिख रहे मैम, एडॉप्टेड का ईडी नहीं दिख रहा, बस इतना ही है। All right. So whatever is written on the board, I am repeating it. Okay, I'm repeating it. What is 19 July 1946? Elections for Constituent Assembly was held. December 1946, first meeting of Constituent Assembly was held. Members were 299. 26 November 1949, the Constitution was adopted, and 26 January 1950, the Constitution was implemented. And 26 January 1950, after that, every year is celebrated as Republic Day. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि रिपब्लिक डे जो है, क्योंकि हम 26 नवंबर को रिपब्लिक डे मनाते हैं और सबको पता है कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिपब्लिक के मीनिंग से। वो सोचते हैं रिपब्लिक का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड, उनका ये मतलब है। नहीं बेटा, रिपब्लिक का मतलब है दैट द हेड ऑफ द स्टेट वुड बी an elected person and not any hereditary ruler. रिपब्लिक का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री जो है वो रिपब्लिक होगी। ठीक है, इसीलिए हम 26 नवंबर को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी इंडिया जो है वो रिपब्लिक होगा। ठीक है, जो रिपब्लिक होगा मतलब कि हमारे जो इंडिया का जो रूलर होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन हो। ठीक है, अब रिपब्लिक जो है, इलेक्टेड जो है, जो मुझे ये जो कंसेप्ट में बता रही हूँ ना, ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आया था और दोबारा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रांस भी जब रिपब्लिक बना था तो कब रिपब्लिक बना था? जब उसके किंग ने एक्सेप्ट किया था कि हमारे यहाँ पर एक लेजिस्लेचर होगा, एक बॉडी होगी, लॉ मेकिंग बॉडी होगी जो इलेक्टेड होगी। ठीक है, सिर्फ मैं किंग लॉ नहीं बनाऊंगा, मेरी जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉ हमारे फ्रांस को रूल करेगा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ फ्रांस को रूल करेगा, वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो लोग बनाएंगे जो इलेक्टेड होंगे। उस दिन उसने ये एक्सेप्ट किया था। ठीक है, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक दैट डे। ठीक है, उसी तरह इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक व्हेन वी एक्सेप्टेड थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट द लीडर of our country would not be any hereditary ruler. That means he would not be any king or a dictator or something. He would be elected by the people. ये हो गया रिपब्लिक। He would be elected by the people नहीं आना। अगर जब हम by the people लगा देते हैं तो वो डेमोक्रेटिक बन जाता है। ठीक है, तो फ्रांस रिपब्लिक बना था, फ्रांस डेमोक्रेटिक नहीं बना था। जी बेटा। मैम जैसे आपने भी कहा कि मैम बाय द पीपल नहीं लगा, तो मैम अगर इलेक्ट करेगा तो मैम अगर लोग नहीं इलेक्ट करेंगे फिर कौन करेगा? बेटा आपको पता है, जब आपने लगता है हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मंडे संडे को टेस्ट भी है उसका। मैम पढ़ा है, वेरी गुड निखिल। तो अब ध्यान से सुनिए, जो फ्रांस की रिपब्लिक जब बना था तो फ्रांस में जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, उसे कौन इलेक्ट करता? मैम समझ आ गया, मैम समझ आ गया। वो हाँ समझ आ गया ना, वो सारे कॉमन लोग नहीं इलेक्ट करते थे, कुछ गिने चुने लोग इलेक्ट करते थे। यस मैम, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, एंड दैट जैसे एमएलए इलेक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सारे लोग जो 18 एंड अबव हैं सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, समझ आया? तो इसी तरह जब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, अपने लीडर्स चुन रहे हैं, दैट मींस
इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तभी रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपल. ऑल द, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा रूल ऑफ पीपल जो है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, रूल ऑफ पीपल इज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली लोग ही रूल करते हैं डेमोक्रेसी में. ये होती है डेमोक्रेसी. और रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक बस इतना है कि जो लीडर होगा वो इलेक्टेड होगा. कौन इलेक्ट करेगा, कैसे इलेक्ट करेगा, वो बीच में नहीं दिया हुआ. रिपब्लिक ओनली मीन्स दैट the leader would be an elected one and not a hereditary one. Have you got, everyone, have you got the difference between republic and democratic? If there is still any confusion, you can ask. Okay, I take it as a yes from everybody that nobody has any confusion, and let's proceed further. So constituent assembly हमारी ये थी in short. ठीक है, और 1950 में हमने अडॉप्ट कर लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्वेश्चन आता है, another important question. This is if a question comes, it would be only be a 3-mark question maximum. That write a short note on constituent assembly. तो constituent assembly में जब short note पूछेंगे तो उसमें आपने ये points लिखने हैं. समझ आया सबको? If a question is asked that write a short note on Constituent Assembly of India, what are you going to write? You will write that the election, सबसे पहले लिखोगे what is the meaning of Constituent Assembly. ठीक है, first point वो होना चाहिए that Constituent Assembly is a set of people or a group of people who wrote the Constitution of India. उसके बाद next आएगा that in July 1946 the election for this Constituent Assembly was first held, and in December 1946 first meeting of Constituent Assembly was held. There were 299 members. On 26 November, the Constitution was adopted, and on 26 January 1950, the Constitution was implemented. And after that, every year we celebrate 26 January as Republic Day. I hope this 3-mark question on Constituent Assembly is clear to everyone. Yes, ma'am. I want a yes from everyone. Good. So हमारी अभी तक हमने जो देखो, जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आई ऑलवेज टेल यू कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करते जा रहे हैं. तो अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर कर लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द पाथ, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमने पिछली क्लासेस में, और आज हमने सीखा अनदर 4th क्वेश्चन दैट write a short note on Constituent Assembly of India. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कवर हुए. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है that although the Constitution was adopted or implemented in 1950, 1950 में, that means आज से 70 years ago, 70 years ago the Constitution was made. ठीक है, और 70 इयर्स से वही कॉन्स्टिट्यूशन हम पे अभी भी रूल कर रहा है. ठीक है, अभी भी आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल कर रहा है. दैट मींस हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे रूल्स बनाए हैं कि आज प्रेजेंट सोसाइटी में 1950 की सोसाइटी और 2020 की सोसाइटी, 2020 और 1950 की सोसाइटी में कितना डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है, तो उस सोसाइटी में जो रूल्स बने थे और आज वो रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी. तो इसका मतलब ये है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड सो केयरफुली एंड सो वेल दैट इट इज implemented, fully implemented even today, right? So we have another question here that why the constitution which was adopted 70 years ago, why is it still applicable on the people of India or on India, right? So that is the question we need to answer. How the leaders of Constituent Assembly or the members of Constituent Assembly were able to make such wide and such
long-term constitution that even after 70 years it is being accepted well by everyone, and I know that another 70 years also this constitution will remain applicable on India. Why? Because the values which are given in the constitution are so well, so diversified. Each and every community, although there are so many communities in India, there is so much of diversity in India, but still each and every community feels safe here. They feel protected here. They know that they are being taken care of. That is why everybody is living so peacefully in India, isn't it? अगर सबको प्रॉब्लम हो तो हमारा इंडिया भी यूगोस्लाविया की तरह बहुत सारी कंट्रीज में डिवाइड हो जाए, लेकिन हमारा कंट्री इज स्टिल आफ्टर 70 years also it is still India is united as one. ठीक है, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से. ठीक है, ये सब बातें जो हैं ये आप सारे बच्चे ध्यान रखना हमेशा. जब भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो यू शुड ऑल बी एबल टू get, or you should all be able to be what could I say, be proud of the constitution which is given to us by the leaders, right? And you should all be knowing that what type of constitution we have here in India, this constitution which is applicable even now. Now we are going to study that how this constitution is applicable even now. So the next question that comes is that the constitution made by the Constituent Assembly, why is it applicable even today? Why should we accept the constitution made by the Constituent Assembly even after so many years? This is a very important question and can come in multiple ways. ये जो question है ये आपका multiple ways से आ सकता है. ठीक है, that why should we accept the constitution even today, or what makes the constitution acceptable in the world today after even after 70 years. So those things we are going to read. अब ऐसा क्यों हुआ कि वो acceptable है अभी भी? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि the constitution of India, it does not give us the view of only few people. It gives us a broad consensus. What is the meaning of consensus? कंसेंसस होता है जब सारे लोग किसी बात पे अग्री करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं. कंसेंट से बनता है कंसेंसस. कंसेंट मतलब किसी बात से अग्री करना, यस करना किसी बात को. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किसी 4, 5, 10, 15 लोगों के अग्रीमेंट से नहीं बना है. वो 299 मेंबर्स के कंसेंसस से बना है. 299 मेंबर्स बहुत होते हैं किसी कोई चीज बनाने के लिए. ठीक है, उन पूरे 299 मेंबर्स ने जब अपना कंसेंट दिया तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो दैट मींस कि हर एक उसमें जो फ्लॉ था, फ्लॉ मींस जो गलती थी, वो इन लोगों ने देखी होगी, हटाई होगी, और जब इनको लगा होगा कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तभी उसे अडॉप्ट किया होगा. ठीक है, सो इट गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन is a broad consensus. ठीक है, it is not a viewpoint of few people but it is a broad consensus. ठीक है, ये first point हमारा ये रहेगा that it expresses a broad consensus. Then next point is
Constituent Assembly represented people of India. Now, how can we say that Constituent Assembly represented people of India? कैसे Constituent Assembly जो है उसने how is it able to represent people of India? हमने अभी बताया, थोड़ी देर पहले पढ़ा कि Constituent Assembly जो है it was elected. Constituent Assembly was elected by many leaders of India. ठीक है, वो लीडर्स इंडिया के जो ग्राउंड लेवल से उठे थे, जो लोगों के साथ अटैच थे, ठीक है, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया. ठीक है, और इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उन्हीं आई वुड से कि हमारे पूरे इंडिया के लोगों ने वोट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, क्योंकि तब इतना ज्यादा वोटिंग तो करवा नहीं सकते थे लोगों से, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. लेकिन इतना जरूर है कि हमारे जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडर्स थे इंडिया में, पूरे इंडिया में सोच लो कितने लीडर्स होंगे, लोकल लीडर्स, और उन सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट किया था. ठीक है, इलेक्शंस हुई थी. ऐसा नहीं कहा था कि एक बंदा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी इसको 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 रख लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. नहीं, सबने अपने अपने वोट डाले थे कि जिसके मैक्सिमम नाम आएंगे उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया जाएगा. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया. दिस इज अनदर रीजन. जब वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसका मतलब लोग जो लॉ बना रहे हैं वो लोगों के लिए अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा. राइट? देन although this assembly हमने बताया that they represented people of India. Next point आएगा that constituent assembly was dominated by leaders of Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, क्या थी. ये पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले. द ओनली पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज एग्जिस्टिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडिया के सारे एफिलिएट लीडर्स जो थे दे वर पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लीडर नहीं थे या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लीडर नहीं थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस was an amalgam of so many ideologies, right? इतनी आइडियोलॉजीज थी, इतने अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में. ठीक है, और उन्हीं के लीडर्स जो थे वो मैक्सिमम लीडर्स वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है that itself was a very diversified organization of people. Next point is the Constituent Assembly represented people from all walks of life, from all castes, religions and communities. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग नहीं थे डोमिनेट कर रहे थे, या एक पर्टिकुलर क्लास के लोग नहीं थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेशनल्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, टीचर्स भी थे, लॉयर्स भी थे और अच्छे लीडर्स भी थे, हर तरह पॉलिटिकल लीडर्स. तो हर तरह की कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन के अलग अलग लोग जो थे दे वर पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हम ये सारे पॉइंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारे पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि जब इतना डाइवर्सिफाइड होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ऑब्वियसली वो जो लॉज बनाएगी वो हर किसी के लिए बनाएगी.
ठीक है, अगर लॉज हर किसी के लिए बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं दे विल नॉट बी any no community would be left, which would not be taken care of in the constitution. So every community had its member in constituent assembly. ठीक है, SC, ST, Hindu, Muslim, Sikh, Christians, Buddhists, professionals, businessmen, political leaders, हर तरह के लोग जो थे they were a part of this constituent assembly, right? उसके बाद अब ये तो थी कि उनके मेंबर्स कौन कौन थे, हम रीजंस पढ़ रहे हैं that why how constituent assembly could make such a good constitution, yeah, why the constitution is still accepted even after 70 years of its adoption. Why is it still accepted in today's modern world? तो हमने अभी तक ये पॉइंट पढ़े कि उसमें इस तरह के लोग थे, ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे उन लोगों ने किस तरह से काम किया, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि ये अलग अलग डाइवर्सिफाइड जगहों से लोग लाके बिठा दिए, चलो जी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब उन लोगों ने कैसे काम किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस आंसर में, ठीक है, तो उन लोगों ने हम कैसे काम किया ध्यान से सुनिए, ठीक है। उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे they all worked in systematic, open and consensual manner. So first of all some basic principles were decided. उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ ड्राफ्ट बनाया जिसमें कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे इंडिया और या हमारा इंडिया के जो रूल्स लागू होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें ये वैल्यूज होंगे। तो एक रफ ड्राफ्ट बेसिक प्रिंसिपल्स हमारा इंडिया किन किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करेगा, काम करेगा, उन प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद many discussions were held under the chairmanship of, who was the chairman here? Chairman of drafting committee. Ma'am, President. Who was the chairman of drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. Yes, Dr. B.R. Ambedkar. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में ये जो बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने पहले लिखे थे उन हर एक प्रिंसिपल पे एक डिस्कशन हुई, ठीक है, जो रफ ड्राफ्ट उन्होंने बनाया हुआ था उस पे डिस्कशन हुई। कितनी डिस्कशन हुई ध्यान से सुनना, कितनी लंबी डिस्कशन हुई। डिस्कशंस वर हेल्ड फॉर 114 days spread across 3 years। 3 साल तक 114 days, 3 साल तक 114 दिन उन्होंने रोज बैठ मतलब 114 दिन तक बैठ के हर एक प्रिंसिपल पे डिस्कशन की कि ये प्रिंसिपल अच्छा है, बुरा है, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इंडिया में, हर चीज, ठीक है। 3 साल, जैसे आज मीटिंग हुई है, आज के बाद 2 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी, 2 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी, 3 साल लग गए उनको जो उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे उनको फाइनलाइज करने में, ठीक है। देयर वर ऑलमोस्ट 2000 अमेंडमेंट्स दैट वाज मेड। 2000 अमेंडमेंट्स उन्होंने कर दी जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें। 2000 अमेंडमेंट्स की जो ओरिजिनल ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स लिखे थे उसमें 2000 अमेंडमेंट्स उन्होंने की। और फाइनली 26 नवंबर 1949 फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी याद है? दिसंबर 1946 में
दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949, 46 से 49, 3 साल लग गए उनको प्रिंसिपल्स को फाइनलाइज करने में, जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया हुआ था उसे फाइनलाइज करने में, ठीक है। एंड ऑल द डिस्कशंस दैट वर मेड इन during these, all the debates that were made during discussions on the principles, they are all preserved. जो भी वो बोलते थे ना वो रिकॉर्ड करते थे, वो रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया। 12 बल्कि वॉल्यूम्स, बड़े बड़े वॉल्यूम जो है हमारे आर्काइव्स में पड़े हुए हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स कहते हैं उनको, ठीक है। हर एक जो पॉइंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, उस पे जो जो डिस्कशंस हुई हैं और जो हमारे लीडर्स ने बोला था उस वक्त कि इस प्रिंसिपल के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ऐसे इम्प्लीमेंट होगा, वो सारी की सारी बातें लिखी गई और उनको स्टोर किया गया है। 12 big volumes, means big books of constitutional debates कहते हैं, ठीक है। और वो हमारे इसलिए काम आती है क्योंकि अगर आज हमें कोई प्रिंसिपल समझ नहीं आता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह समझने के लिए हम फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि जब वो प्रिंसिपल बनाया गया, लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लीडर्स ने क्या सोच के लिखा, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या डिस्कशन हुई, that help us to understand all the values written in the constitution in a better way, right? So these were the reasons why, or these are the reasons why the constitution is accepted even today. कितनी discussions, कितने लोग, कितनी amendments की गई और इतनी देर तक किसी चीज पे डिस्कशन हो तो obviously वो चीज हमेशा अच्छी ही आती है। So this is a big answer, as you can see, right? Mostly this is a 5-mark question but can come as a 3-mark question also, right? लेकिन आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि what are the reasons that the constitution is still accepted, तो आपने उन reasons में ये सारे reasons, ठीक है। क्या reasons लिखने हैं? सबसे पहले the constituent assembly, it represents a broad consensus, right? उसके बाद the Constituent Assembly represented people of India because the people, the members of Constituent Assembly were elected. They were all elected by the members of provincial legislative assemblies of that time, all the leaders of India, and that is why they represented people of India. This was dominated by the Indian National Congress, which itself was a very, very diversified organization or political group. Then the Constituent Assembly represented people from all walks of life, right? All the professionals, all the people from all the sectors, I can say, from primary, secondary, tertiary sector of businessmen and people who were, belonging to the farmer groups even. उनके लोगों, उनके लीडर्स को लिया गया, फार्मर्स के। उसके बाद हर रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के लोगों को लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद some basic principles were decided and the discussions were made on those basic principles for 114 days spread over 3 long years, and more than 2000 amendments were made, right? And because of all these reasons, the constitution became the result of all these things was a constitution which is even accepted. Understood, everyone? This was a bit lengthy topic. आपको ये topic समझ आया सबको? बेटा बच्चे हो यहाँ पे? Yes, ma'am. Good. I hope you all people have understood this topic well, and in order to retain that this topic, आप सारे book में ये पढ़ोगे, ठीक है? जब भी मैं आपको कुछ सोशल स्टडीज का पढ़ाती हूँ, लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक बार बुक से रीडिंग कर लिया करो। बुक से रीडिंग करने से the topics they are retained in your mind,
रह जाते हैं, रिटेन रहते हैं, दिमाग से निकल नहीं जाते। ठीक है, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ उस वक्त आपको लगता है कि समझ आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं तो इट विल all wash away from your mind. So in order to, I teach from NCERT, Rajni. I don't see for classes 9th and 10th board exam. I have told you many a times that the NCERT book is the Bible for the students, right? NCERT book एक ऐसी book है जिससे कि सारे क्वेश्चंस और सारे बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, वो इसी से आते हैं। ठीक है, तो मैं उसी से पढ़ाती हूँ और उसके बाद जब मैं पढ़ाती हूँ आपको, आप बुक कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक अच्छी तरह पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद आपको जो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं उनको पढ़िएगा अच्छी तरह से, और बाद में फिर आप अपनी रिफ्रेशर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। रिफ्रेशर आपने सिर्फ इसलिए पकड़नी है क्योंकि रिफ्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर याद हुआ है कि नहीं हुआ। रिफ्रेशर से आपने लर्न कुछ नहीं करना है, लर्न आपका हो गया। कैसे हो गया? आपको मैंने क्लास में पढ़ाया, आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, आपने नोट्स पढ़ लिए। ये 3 चीजों से जब आप निकलते हो तो आपको सारा कुछ लर्न हो जाता है। ठीक है, अब लर्न करने के बाद आपने चेक करना है कि आपको आया है कि नहीं। उस चेक करने के लिए आप रिफ्रेशर खोलोगे और उनके क्वेश्चंस पढ़ोगे और देखोगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोग फिर उसके बाद उनके आंसर्स भी पढ़ ही सकते हैं। So this is how you should approach for studying for your board exams or for your final exams. Okay, now the next topic which we are going to take today is the guiding values of Indian Constitution. Guiding values. अभी तक हमने यही पढ़ के आए हैं कि हमारी जितनी भी वैल्यूज है वो बड़ी अच्छी हैं, हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो है क्या? कौन से वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिरे, वो भी तो पढ़ना है हमने। अभी तक हम बस ये पढ़ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, और वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इतनी अच्छी तरह उन लोगों ने लिखी है कि वो अभी भी एक्सेप्टेड है। लेकिन एक्चुअली में वैल्यूज है कौन सी, दैट वी शुड नाउ बी स्टडीइंग। So the next topic is, what are the guiding values of Indian Constitution? हमारी इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस से बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल हमारे लीडर कौन रहे थे? सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, कौन थे हमारे इंडिया के? Repeat the question. My question, yes, Mahatma Gandhi, Rajni, that's the right answer. The most influential leader that helped us to gain our independence, that was the main reason behind our independence. Ma'am, board नीचे जा रहा है. And guided. बेटा क्या कह रहे हो आप? मैम बोर्ड नीचे जा रहा था. All right. So the leader that guided through the all the struggles that we made during pre-independence period, the leaders that guided us on how we can achieve our independence, and the leader that guided almost each and everything that we did before independence and even after independence was Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम वैल्यूज को गाइड किया है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हमने महात्मा गांधी जी से ली। ठीक है, हालांकि महात्मा गांधी वाज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
कहीं पर उसके पार्ट नहीं थे। महात्मा गांधी जी कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आए। He was, nowhere he was a leader, like a political leader. He wasn't a political leader. He was the leader of the masses. He never, wanted any chair for him. उनको अपने लिए कभी भी किसी चेयर की जरूरत नहीं। चेयर का मतलब है a position, a political position और an official position। उनको कभी भी कहीं से भी ऑफिशियल पोजीशन कहीं से ना उन्होंने ली ना एक्सेप्ट की। But he was the person who guided through all the pre-independence and during independence and even post-independence also, right? All the leaders, they were, most of the leaders of India and many leaders of the world also, they followed the principles given by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के फॉलोअर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में थे। ठीक है, हमें पता है कि नेल्सन मंडेला हो गए, क्या नाम था, जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, ये सारे लोग जो थे दे वर ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इवन बराक ओबामा ने बहुत बार अपने स्पीचेस में महात्मा गांधी जी का नाम लिया है कि उनकी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो ही ऑल्सो फॉलोज और लाइक्स और व्हाटएवर। तो हमारे we should be proud that we had such a leader in a country which was being and is being followed everywhere in the world, right? अब महात्मा गांधी जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत कुछ दिया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमने महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स से ली। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यूज थी उनको यही नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे इंडिया में जो लोग थे दे वर ग्रेट फैंस ऑफ महात्मा गांधी। नो, देयर वर मेनी लीडर्स हु वर opposing also महात्मा गांधी। ठीक है, who were against महात्मा गांधी। One of the leaders who was against Mahatma Gandhi was Dr. B.R. Ambedkar himself. Dr. B.R. Ambedkar had, big differences with Mahatma Gandhi. बहुत उनके आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। वो क्या डिफरेंसेस थे और कैसे फिर महात्मा गांधी जी ने कोशिश की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अगेंस्ट महात्मा गांधी। आपको याद है पूना पैक्ट, आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में। पूना पैक्ट क्या था एक्चुअली, क्या हुआ कि जैसे मुस्लिम्स ने this whatever story I'm going to tell you, it has nothing to do with your syllabus, it is just for your knowledge। क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले जब मुस्लिम्स और हिंदूज में डिवीजन करवा दी ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुस्लिम्स जो है वो अपने लीडर्स अलग से चुनेंगे। ठीक है, वो उनकी इलेक्शंस अलग से होंगी मुस्लिम लीडर्स की, मुस्लिम कम्युनिटीज की। ठीक है, इसका मतलब है कि डिवीजन हो गई बाकी इंडिया में और मुस्लिम्स में। ये जब 1930s की बात है, जब ये डिवीजन होगी 1935 में शायद पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो उससे पहले की बात है जब हिंदू और मुस्लिम में उन्होंने डिवीजन करवा दी। उसके बाद अगली डिवीजन हो रही थी हिंदूज के अंदर ही, कास्ट सिस्टम। लोअर कास्ट जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, जो लोअर कास्ट थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज मेनली एन अपर कास्ट पार्टी। ज्यादातर जो लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारे अपर कास्ट थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यस, रिजर्वेशन की तो बाद में बात आई, पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप लोग आने नहीं दे रहे, हमें इंडिया में लीडर्स आप बनने नहीं दे रहे, हमें मतलब लोअर कास्ट को। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हम सारे जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको भी लीडरशिप में आना है, उनके लिए भी हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो। तो वो तब तक नहीं होगी जब तक लोअर कास्ट में से कुछ अच्छे लीडर्स जो हैं वो इंडिया की लीडरशिप में नहीं आएंगे। ठीक है,
तो इसके लिए उन्होंने काफी डिमांड किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले उनको लीडरशिप दी जाए, लेकिन बहुत सारे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ये बात नहीं मानी और लोअर कास्ट को नहीं आने दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तब बी आर अम्बेडकर ने कहा ठीक है, आप हमें अपने साथ मिला नहीं रहे हैं तो हम आपसे अलग हो जाते हैं, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, हम भी अपनी इलेक्शंस अलग से करेंगे और अपने लीडर्स अलग से चुनेंगे। अब महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर पहले मुस्लिम्स तो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं हमसे, ठीक है, अगर लोअर कास्ट भी हमसे अलग हो गए तो इंडिया तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे, अगर हम आपस में ही डिवाइड हो गए तो ये सब कैसे होगा। तब महात्मा गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर को बुलाया और समझाया, या दोनों के बीच में डिबेट हुई, डिस्कशन हुई कि कैसे लोअर कास्ट को भी हम इंडिया की लीडरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। तब डिसाइड हुआ रिजर्वेशन का, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपको हम, जब इंडिया इंडिपेंडेंस होगा, आप लोगों को, लोअर कास्ट को हम रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। और तब जाके बी आर अम्बेडकर जो है वो माने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ने में, और फिर उनको चेयरमैन बना दिया। महात्मा गांधी जी के कहने पर ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पार्टिसिपेट भी कराया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इवन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया, ठीक है। Although B R Ambedkar was a very learned person, or he was a man who gave who helped in the drafting of the Constitution of India, that is so well drafted. तो वहां से हमें पता चलता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर although was a very learned man, लेकिन because of certain differences from महात्मा गांधी, हालांकि ये पूना में पैक हुआ महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजिकली उनमें डिफरेंसेस बहुत सारे रहे। उनमें से कुछ डिफरेंसेस आपकी बुक में भी दी गई हैं, कुछ आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस। क्या बताया हुआ है कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सारे लोग इक्वल हो, ठीक है, लेकिन उसके नीचे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला हुआ है कि आप रिटन में, राइटिंग में तो सारे कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, लेकिन क्या एक्चुअली में हमारी सोसाइटी इक्वल है? एंड व्हाटएवर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट टाइम, इट इज वैलिड इवन टुडे। आज भी अगर हम देखें तो हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या सारी कास्ट आज बराबर हैं? डू यू थिंक ऑल कास्ट आर ट्रीटेड इक्वली? The answer is a big no. अभी भी कास्ट डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अभी भी जो लोअर कास्ट हैं, they are suffering a lot, ठीक है। अभी भी जो मैक्सिमम मीनियल जॉब्स हैं, they are done by the lower caste only. और अभी भी जो मैक्सिमम more than 90% अपर पोस्ट हैं, जो हायर पोस्ट हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में, दे आर ऑल टेकन बाय द हायर कास्ट। दैट मीन्स एजुकेशन, लिटरेसी रेट अगर देखा जाए, अभी भी अपर कास्ट का लिटरेसी रेट इज फार हायर देन द लिटरेसी रेट ऑफ द लोअर कास्ट। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें बताते हैं कि अभी भी हमें बहुत काम करना है लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने, राइट? So we'll continue with the guiding values of Indian Constitution in your next class also, right? Now अभी आप लोग जो आपका टेस्ट है संडे को फ्रेंच रेवोल्यूशन का, and what is the other thing which is coming? Is it story of village Palampur? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का आपका टेस्ट है, और मैंने पिछले स्कोर्स देखे आपके। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद हाउ यू did in your social studies. This time I am expecting कि आप बहुत अच्छा एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे सोशल स्टडीज का, और अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ग्रुप में मेरा नंबर है, if you have any trouble anywhere you can text me anytime, right? Now thank you everyone, we'll meet next week again now and we'll continue with the chapter. Thank you everyone.